Hello my dear students, third year students. So today we will start the therapeutic part of surgery. As you all know that being homeopath is very difficult and it is an art. We have to probe all the symptoms, especially the mental symptoms. But in acute cases, we don't need such big case taking, so we have to apply our mind, and on therapeutics basis also we can choose the correct remedy. So in that case repertory helps us lot, and in question paper when any disease is asked, like for example explain cellulitis or abscess or pelvic abscess, rheumatoid arthritis or varicose vein, then you have to give at least some medicines. If they are asking specially that give 5 medicines, then describe the 5 medicines, 5 homeopathic medicines. So write down all the key symptoms of the medicine, the guiding symptoms, the mental journals, the modalities like aggravations and ameliorations. So all these things are needed. So therapeutic part can be as vast as you desire, so you can put lot of material in the paper. Now when cellulitis, for example today we are taking the topic cellulitis, so when cellulitis is asked, then just describe the cellulitis. We have done with cellulitis, then explain it, what is this, how the pathology occurs in this, what is the culprit, who is the organism behind it, then what are the clinical features in it, and which investigations you will recommend to patient. For example, describe the signs and symptoms, like in cellulitis there is pain, tenderness, there is inflammation, swelling, edema, and edema is due to the swelling caused by the fluid in the tissue. Then erythema, there is redness on the skin, then skin is warm to touch. Whenever you will touch the skin, it will be little warmer. Then actually it is an infection, so beside this there will be fever present. So fever, chills, body ache, muscle ache, these are the normal symptoms. Now in repertory when we look, then for cellulitis many medicines come like abrotenum, apis, arsenic, baptisia, then graphitis, hepasol, flecasis, medorinum, merc, rustox, apis, then rustox, merc, belladonna. Belladonna is very nice remedy for cellulitis. Apis, arnica is very nice remedy. Merc, lachesis. So you have to describe all these medicines with the guiding and the keynote symptoms of the medicines with the modalities. So let's begin. First we will take the silica. The silica is specially the remedy for the cases where suppuration has taken place, but if the pus formation has not yet started, so in case of cellulitis also we can prescribe. If the patient is having such symptoms of silica like perspiration, बहुत पसीना आ रहा है पेशेंट को हेड नेक पे, then chilly है, thirsty है, हाथों में भी पसीना आ रहा है, but there is heat in the head, and कंप्लेंट्स के बावजूद भी पेशेंट वांट्स टू वर्क, वांट्स टू गो टू स्कूल. लाइक अगर बच्चे हैं, बच्चों को हो रहा है सेलुलाइटिस, तो दे वांट टू अटेंड द स्कूल रेगुलरली, दे वांट टू स्टडी रेगुलरली. दैट्स व्हाई सिलिका इज इन गुड इमेज. सो माइल्ड है, पेशेंट आपको अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ सिलिका इन केस ऑफ सेलुलाइटिस. देन एपिस. एपिस में मेन्स फीचर्स क्या मिलेंगे? जो पेन का कैरेक्टर होगा दैट विल बी स्ट्रिंगिंग, सपोरेटिंग, स्मार्टिंग, जैसे चुभने वाला, काटने वाला पेन मिलेगा. स्वेलिंग एंड पफीनेस मिलेगी पेशेंट में, हीट मिलेगा. एंड आराम कैसे मिलेगा पेशेंट को? विद द कोल्ड एप्लीकेशन एंड ओपन एयर, एंड स्पेशली आफ्टरनून में उसको खराब लगेगा, या फिर वार्म एप्लीकेशन से एग्रवेशन होगा. तो एपिस को एक्सप्लेन करो, एपिस के सारे गाइडिंग सिम्टम्स एंड की नोट सिम्टम दिखाओ, एपिस की टंग कैसी है वो एक्सप्लेन करो. देन कैंथरिस. कैंथरिस इज अ रेस्टलेस एंड एंशियस इंडिविजुअल्स, मे बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो इन केस ऑफ सेलुलाइटिस, ओनली अवेलेबल अंडर द डायरेक्शन of a licensed homeopath. So after getting registered you can prescribe according to your observation. तो कैंथरिस में कैसी
पेन होगी, बर्निंग सेंसेशंस अगर पेशेंट बोल रहा है सेलुलाइटिस की जगह पे उसको बर्निंग सेंसेशंस है, देन लेकेसिस इज वेरी गुड रेमेडी फॉर सेलुलाइटिस, स्पेशली फॉर द लेफ्ट साइडेड सेलुलाइटिस। एंड लेकेसिस के अंदर पेशेंट की जो थर्मल्स होंगे वो जनरली हॉट एंड थर्स्टलेस, कुड बी थर्स्टी ऑल्सो, एंड बीमारी में भी उसको प्लेफुल होगा, खेलने का मन करेगा। देयर विल बी सेंसिटिविटी टू क्लोथ्स एंड स्पीच फास्ट हो जाएगी। तो इन एक्यूट कंडीशन जो लेकेसिस है वो ज्यादा बोलने लगेगा, ज्यादा बातचीत करने लगेगा। देन रस्टॉक्स इज वेरी गुड रेमेडी फॉर एरिसिपेलस एंड सेलुलाइटिस। रस्टॉक्स के अंदर भी पेशेंट को ठंड लगेगी एंड थर्मल्स में थर्स्टलेस एंड थर्स्टी हो सकता है, एंड इट इज एग्रावेटेड इन कोल्ड एंड वेट रेनी वेदर। तो अगर उस मौसम में सेलुलाइटिस है पेशेंट को, या एग्रावेट हो रहा है वार्म या डैम्प वेदर में, एंड गेट्स बेटर बाय वार्म एप्लीकेशन। अगर पेशेंट इज सेइंग दैट सेलुलाइटिस की जो स्किन में सेलुलाइटिस है वहां पे वार्म एप्लीकेशन अप्लाई करने में आराम मिल रहा है, then we can think of Rustocks. And if patient is very restless, then in Apis we have already discussed stinging pain होगी, smarting, burning, and along with that there will be sudden puffing of the whole body or the affected area. देन लेकेसिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एक्यूट कंडीशन में जो पेशेंट है वो ज्यादा बातचीत करने लगेगा एंड प्लेफुल होगा। फीवर के टाइम पे भी पेशेंट विल बी प्लेफुल, जेस्टिंग्स करेगा, एंड ही पेशेंट विल से कि मुझे जल्दी ठीक होना है, मुझे खेलना है, या देयर विल बी डिजायर फॉर अम्यूजमेंट। दिस इज वेरी मार्क सिम्टम फॉर लेकेसिस एंड एक्यूट कंडीशंस। एंड मर्क इज वेरी गुड रेमेडी। नाउ मर्क के जो थर्मल्स हैं वो एंटी थर्मल है, दैट कुड बी थर्मल्स, जैसे पेशेंट चिली भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है, थर्स्टलेस एंड थर्स्टी could be any. So bothered by both heat and cold and are often trembling and impulsive. जो patient not obeying their mother and precocious child, इंटेलिजेंट होते हैं, रिवॉल्टिंग होते हैं, रेस्टलेस होंगे एक्यूट में, एंड देयर इज हरी एंड हेस्ट। सो यू विल नोट दैट पेशेंट इज वेरी हरीड। देन रस्टॉक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रेस्टलेस होगा, एंशियस होगा, एंड डॉक्टर को बहुत रिस्पेक्ट देगा, एंड जो वेदर है अगर डैम्प वेदर में या रेनी वेदर में उसकी कंप्लेंट बढ़ रही है, वार्म एप्लीकेशन से अच्छा लग रहा है, देन वी कैन थिंक ऑफ रस्टॉक्स। देन सल्फर इज वेरी गुड रेमेडी फॉर सेलुलाइटिस। अगर पेशेंट इज हॉट एंड थर्स्टी, लिप्स रेड हैं, पाम्स एंड सोल्स रेड हैं, एंड चेक द पाम्स एंड सोल्स ऑफ पेशेंट, अगर गर्म हैं और रेड हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ सल्फर इन दैट केस। एंड अगर पेशेंट रेडी नहीं हो रहा किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, बीपी तक के लिए नहीं रेडी हो रहा, डर्टी अपीयरेंस है, सो यू हैव टू गिव द गाइडिंग सिम्टम्स, की नोट सिम्टम ऑफ सल्फर, कि सल्फर में क्या क्या चीजें मिलती है। बर्निंग सेंसेशन है तो सेलुलाइटिस के एरिया में बर्निंग सेंसेशन फील करेगा पेशेंट, प्यास लगेगी, गर्मी लगेगी। सो इफ द पेशेंट इज हॉट, थर्स्टी, एक्सट्रोवर्ट, फ्रेंडली, पाम्स एंड सोल्स हॉट है एंड बर्निंग सेंसेशंस है सेलुलाइटिस की एरिया में, देन वी कैन थिंक ऑफ सल्फर। देन बिसाइड दिस बेलाडोना इज वेरी नाइस रेमेडी इन केस ऑफ सेलुलाइटिस एंड एरिसिपेलस, जहाँ पर रेडनेस है, मार्क्ड कंजेशन है, एंड पेशेंट जो है वो डल है एंड डिजायर्स लेमनेट्स, एंड देयर इज सडन ऑनसेट ऑफ कंप्लेंट, एवरीथिंग इज सडननेस, देयर इज सेंसिटिविटी टू नॉइस एंड लाइट ऑल्सो। सो पेशेंट जो जॉली है, एक्सट्रोवर्ट है,